Very good morning, my dear student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajuda. Student, today I am taking the another topic from the chapter number 8 of the class 11 physics from the NCERT. The name of the chapter, gravitation. Student, in the previous video related to this chapter, we seen the number of derivation. What is the mean of the previous video? That means Kepler's first law, केपलर सेकेंड लॉ, केपलर थर्ड लॉ. ओके स्टूडेंट, और कुछ भी डेरिवेशंस देखे रिलेटेड टू टी स्क्वायर इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ आर क्यूब. मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस. नाउ टुडे वी टेकिंग अ रिलेशन बिटवीन द कैपिटल जी, relation between the small g and d g dash. Okay student, today's question, establish a relation between the small g and g dash. What is the meaning of the small g? You know that very well. Capital G, that means a universal gravitational constant. The value of capital G will be equal of 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square. But the value of small g always will be equal of 9.8 meter per second square. But the value of g is a different on a different places of earth. You know that very well. Today we have to define a relation between the g and g dash. What is the meaning of the g? G, that means a gravity on surface of earth. And what is the meaning of the g dash? For example, let us consider this is a earth and this is a object. When object touch with the surface of earth, we feeling gravity defined by small g. When object with the some हाइट, मान लीजिए बीच में क्या है, पर्टिकुलर कोई एक हाइट है, तो इस पे कितना ग्रेविटी फील होगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी डैश. ओके स्टूडेंट, दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू डिफाइन, वी have to find out the altitude of g and g dash according to the exam pattern. अगर जो मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करें कि पेपर में ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, स्टूडेंट एक्सप्लेन विथ मैथमेटिकल कैलकुलेशन हाउ द वैल्यू ऑफ जी, हाउ द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी चेंज विथ एल्टीट्यूड. दैट मीन्स स्मॉल जी की वैल्यू में कैसे कैसे चेंजेस होंगे, ठीक है, ऑन द सरफेस, ठीक है, और पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर. लेट वी कंसीडर अ ऑब्जेक्ट, लेट वी कंसीडर अ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द मास स्मॉल m. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट वन वी कंसीडर अ ऑब्जेक्ट, और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मास कितना है, विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल m. स्टूडेंट, यू नो दैट वेरी वेल, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ पे अपन रहते हैं इसलिए सम्मान में द मास ऑफ अर्थ ऑलवेज विल बी रिप्रेजेंट बाय द कैपिटल एम एंड रेडियस ऑफ अर्थ ऑलवेज रिप्रेजेंट विद द कैपिटल आर. यू नो दैट वेरी वेल, मास ऑफ अर्थ ऑलवेज कांस्टेंट, रेडियस ऑफ अर्थ ऑलवेज कांस्टेंट. तो हमने यहाँ पर सपोज करा, क्या सपोज करा, मास ऑफ स्टूडेंट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट will be equal of small m and distance between the surface of earth and object will be equal of small h. मेरे साथ बोलिए, हमने अभी तक दो चीज़ों को समझा. फर्स्ट वन, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया स्टूडेंट, स्मॉल m, एंड हाइट of object from the surface of earth will be equal of small h. Let us consider mass of earth will be equal of capital M and radius of earth will be equal of capital R. Okay my dear student, अभी तक हमने क्या देखा है, फर्स्ट वन, ठीक है, क्या करना है इस क्वेश्चन में, वी हैव टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनल फॉर्मूला बिटवीन द जी एंड जी डैश. व्हाट इज द मीन ऑफ द जी? जी, दैट मीन्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एंड जी डैश दैट मीन्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, एबो द सरफेस. पर्टिकुलर सरफेस पे टच नहीं है, वो सरफेस पे कुछ ना कुछ हाइट के साथ, ठीक है, पर्टिकुलर किसी पोजीशन पे इस्टेब्लिश है. ओके स्टूडेंट, सो
First one, let us consider the mass of object will be equal of small m and mass of earth will be equal of capital M. Let us consider the radius of earth will be equal of capital R. You know that very well. ठीक है, that means a shape of earth will be equal of shape of circle and radius always will be equal of capital R, that means a constant. तो ये कितना हो गया स्टूडेंट, कैपिटल R. and the height that means a distance between the object and surface of earth will be equal of small h. मतलब इनडायरेक्टली अगर जो मुझे कैलकुलेट करना है टोटल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, तो टोटल विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल R प्लस स्मॉल h. फिर से देखिए, अकॉर्डिंग टू द फिगर कैपिटल R दैट मीन्स डिस्टेंस between O and A and distance between A and B will be equal of small h, such that total distance between O and B will be equal of R plus h. Okay my dear student, ठीक है, हमने टोटल कैलकुलेट कर लिया है कैपिटल R plus h. फर्स्ट वन, अगर जो हम बोले व्हेन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस, अगर जो ऑब्जेक्ट सरफेस पे होगा तो ग्रेविटी डिफाइंड बाय g और यहाँ पर ग्रेविटी डिफाइंड बाय g डैश. ओके, व्हाट इज द मीन ऑफ द ग्रेविटी? ग्रेविटी दैट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड फॉर्मूला ऑफ स्मॉल g विल बी इक्वल ऑफ capital G, capital M and R square. The formula of small g always will be equal of gm by R square. देखते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, ठीक है. एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम, क्या डायग्राम में एक्सप्लेनेशन है? फर्स्ट वन, लेट अस कंसीडर द मास ऑफ प्लेनेट विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल M एंड रेडियस विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल R. द मास ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल ऑफ स्मॉल m विच कंसिस्ट ऑन द पॉइंट कैपिटल B एंड द हाइट from the surface of earth will be equal of small h. Simple explanation. Student, we know that very well. What is the mean of the capital F? Capital F that means a gravitational force which is defined by यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से. सपोज ऑब्जेक्ट, द मास ऑफ अर्थ इक्वल टू कैपिटल M एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल ऑफ स्मॉल m and distance from the center will be equal of capital R. The value of attraction force or gravitational force will be equal of capital F. You know that very well. ठीक है, F is a directly proportional m into m. Second one, F is a directly proportional. Okay, by use of the statement 1 and 2 we can say F directly proportional m into m by R square, proportional replaced by any constant, proportional replaced by any constant and here constant defined by capital G. देखिए स्टूडेंट, मैं हर एक चीज़ को बता रहा हूँ, ठीक है. आप बोलेंगे कैसे कैपिटल F फाइंड आउट करा, तो कैपिटल F विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m by R square. And second one, what is the mean of the centripetal force? When any object moving in a circular path, student, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करी है, इसमें क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं? दो प्लेनेट. तो प्लेनेट क्या होते हैं? सर्कुलर पाथ में रोटेट होंगे. पाथ एलिप्टिकल होता है, मतलब लगभग सर्कुलर. तो यहाँ पर कौन सा फोर्स होगा? अ फोर्स टूवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर, दैट मीन्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स. F इक्वल टू m इंटू जी.
by use of equation number first and second, by use of equation number first and second, दोनों इक्वेशन के LHS सेम हैं तो RHS भी सेम होंगे. So finally m will be cancelled by m, so we getting the value of small g. The value of small g will be equal of gm by r square. Okay student, I hope you getting the first part of the derivation, the value of small g. What is the meaning of the small g? That means the acceleration due to gravity when object lies on the surface of earth. चलिए ये फर्स्ट पोजीशन के लिए हमने कर लिया. ठीक है, सपोज नाउ टाइम टू सपोज सेकेंड कंडीशन, ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट कैपिटल बी. अगर जो ये बी पर जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ विल बी इक्वल ऑफ h प्लस r. स्टूडेंट हियर r रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बट r. नाउ फॉर द केस नंबर 2, अगर जो हम समझे कैपिटल R will be equal of r plus h. So finally here r replaced by r plus h whole square. Okay student, now what is the meaning of the derivation? क्या करना है आज हमको? Establish a relation between the g and g dash. That means by use of equation number first and second, 1 divided by 2 or 2 divided by 1, कुछ भी कर लीजिए. So LHS will be divided by LHS and RHS will be divided by RHS. Okay student, GM will be cancelled by GM, GM will be cancelled by GM. So finally we getting r square by r plus h whole square. Okay, ठीक है. नाउ वी गेटिंग द सेकेंड पॉइंट ऑफ द डेरिवेशन, g डैश बाई g विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल R स्क्वेयर डिवाइड बाय r प्लस h होल स्क्वेयर. स्टूडेंट बी केयरफुल. देन आफ्टर रेसिप्रोकल, ठीक है, अगर जो हम ठीक है इस r स्क्वेयर को अपॉन में लिया है, सो वी गेटिंग g डैश बाई g विल बी इक्वल ऑफ 1 बाय r प्लस h होल स्क्वेयर बाय r स्क्वेयर. स्टूडेंट यू नो दैट वेरी वेल, a स्क्वेयर बाय b स्क्वेयर दैट मीन्स a बाई b होल स्क्वेयर. तो हम पूरे का क्या लिख देंगे? होल स्क्वेयर. सेपरेट करा, सो वी गेटिंग r बाय r. स्टूडेंट r बाय r प्लस ये क्या हुआ ये भी समझाते हैं. ठीक है, पावर पॉजिटिव इन द केस ऑफ डिनोमिनेटर. सो इन द केस ऑफ न्यूमरेटर पावर विल बी चेंज पॉजिटिव टू नेगेटिव. ठीक है, होल डिवाइड बाय r, सेपरेट करा तो r बाय r प्लस h बाय r. r विल बी कैंसल बाय r. सो फाइनली वी गेटिंग 1 प्लस h बाय r होल पावर माइनस 2. ओके, नाउ बाय यूज ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम. क्या होती है स्टूडेंट बाइनोमियल थ्योरम? बाइनोमियल थ्योरम दैट मीन्स x प्लस a होल पावर n इक्वल टू एंड सो ऑन. बट अगर जो हम शॉर्ट में समझे तो पावर हमेशा मिड पोजीशन पे आ जाती है. पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव इंटू 2. ओके, प्लस माइनस माइनस एंड हियर, ठीक है, इस पोजीशन पे आएगी प्लस माइनस माइनस 2h बाय r. ओके, नाउ ठीक है, बाय द क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेटिंग g डैश विल बी इक्वल ऑफ g इंटू एनीथिंग. अब समझिएगा स्टूडेंट, अगर जो हमने मैथमेटिक्स में बोला 8 इक्वल टू 4 इंटू 2, 8 इक्वल टू 4 इंटू 2, ठीक है, ब्रैकेट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 2, g डैश रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 8 सपोज, और g की वैल्यू कितनी है 4, मतलब इनडायरेक्टली वी कैन से 8 ग्रेटर देन 4. यू नो दैट वेरी वेल, अगर जो हमने लिखा है 8 इक्वल टू 4 इंटू 2, that means 8 is more than 4. So finally by use of the expression number 5, by use of expression number 5 we can say g dash is greater than g. मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? what is the meaning of the g dash? you know that very well. g dash मतलब क्या है? ठीक है, यहाँ पर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा as compared to surface. Student, first one,
व्हाट इज रिकॉल कर रहा हूँ, पूरा डेरिवेशन फिर से देखिए, एफ दैट मीन्स जी एम एम बाई आर स्क्वेयर बाय, ठीक है, बाय यूज ऑफ नोट अ सेंट्रीपिटल फोर्स, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एफ इक्वल टू एम जी। दोनों इक्वेशन के LHS सेम है, सो RHS भी सेम होंगे। m will be cancelled by m, so finally we getting the value of g, ठीक है। केस नंबर 2 एट अ पॉइंट कैपिटल B, ठीक है, डिस्टेंस विल बी इक्वल ऑफ r प्लस h। इक्वेशन नंबर 4 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 3 बाय यूज ऑफ द इक्वेशन नंबर 4 एंड 3, सो वी गेटिंग g डैश बाय g इक्वल टू दिस, ठीक है, रेसिप्रोकल करा स्टूडेंट, सो वी गेटिंग दिस आर स्क्वेयर एंड दिस होल स्क्वेयर, सेपरेट करा, पॉजिटिव टू नेगेटिव सेपरेशन एंड बाइनोमियल, सो वी गेटिंग g डैश इज ग्रेटर देन g। I hope student you getting the 110% solution related to this question. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajodha. Student, please like my video, share between the friends, subscribe our channel, and please study all subject from our channel. Thank you so much.